Very good. Very good. Good morning, Meenu. Yeah, you were saying something, Vandana, about the Netflix series. Yeah, What is it about? it is about some plane. It took off in 2018, and some very bad turbulence happened, and they showed they landed 5 years later. Okay. It Uh, has come in Hindi also. it has come in Hindi also. I don't know. यहाँ पे I just survivors, and they are hearing those kind of sounds in the background, like somebody telling them what to do. It's like, it's weird. No, but universe always tells you what to do. आप tune in ही नहीं करते हो ना उसके साथ. If you start tuning in, so universe starts giving you directions where to do, what to do. Like many, अभी आजकल तो नहीं कर रही हूँ, but many times in the morning I ask universe, what are the 3 things I should do today? And I'm guided. Okay, ये कर लेना. And कभी-कभी होता है कि जब I think हमारी mind, body and soul is aligned, I think that is the time we are able to tune in. I remember a long time back, I think 2001 or 2 की बात है. It was as you said, weird. I also found it very weird at that moment because I was not aware of spirituality का इतना ज़्यादा नहीं था उस time पे मुझे. थी, but इतना नहीं था. I was working with Honda. I was coming back, and a friend of mine, his wife is a dentist, and I had some problem with my tooth. So on my way back from Manesar, I stopped at their place, at her clinic, and I just called from their landline to my landline to tell my mother that I'm here, और मुझे late हो जाएगा. And something very, very, I will. अभी तो उस टाइम तो मुझे weird ही लग रहा था. Something very profound happened. I dialed her number and I was holding for my mother to say something after saying hello. And you know what I heard on the phone? I heard very clearly, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Phone के अंदर से मुझे वो आवाज आ रही थी. Oh wow. And I was zapped. मतलब मुझे goosebumps हो गए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? And I told my friend, I said, सुन देख इसमें आवाज क्या आ रही है? She couldn't hear anything. She says, नहीं कोई नहीं है, किसी ने hold किया हुआ है. And it was so vibrant and so clear. So it all depends कि आप tune in कब करते हो. अगर आप tune in करते हो तो universe तो हमेशा ही बात कर रहा है आपसे. तो अभी जब आपने बोला तो मुझे ये incident याद आ गया. But उसके बाद कभी नहीं हुआ. But that I'm so blessed that I had that experience. Nice. Yeah. Okay, so good morning everybody, and we are going to start our chapter today. So who's going to read today's chapter? और उससे पहले जरा मुझे बता दें आप लोग किस-किसने आज मॉर्निंग की प्रैक्टिस करी है? Ma'am, I want to ask something, ma'am. This is Archana from Kolkata, ma'am. Yeah, Archana. Ma'am, just because we are reading this book, we are in the structure also, and we are doing the practices. I keep on doing gratitude now and then. But as we say, challenges are part of life. I also live in a joint family. Something or the other is, popping it up. And, I am not able to gratitude. And my mind is telling, Aaj तूने कोई gratitude नहीं किया. Otherwise, whatever I touch, I gratitude for everything. But I don't know, from past 1 or 2 days, something is really hitting me. And it's like, I'm unable to do gratitude. In that case, what do I do, ma'am? Okay, so once again, Darshan ji, please go on mute. Darshan ji, please go on mute, please. Okay, so Archana, when you said that, you keep this, you keep
feeling that you've not been doing gratitude. Yes, So the ma'am. first thing is that, it's something to celebrate. You should feel happy that at least you're able to catch yourself कि आप gratitude नहीं दे पा रहे हो. इससे Okay. पहले की जिंदगी में तो हम gratitude देते नहीं थे और हमें पता भी नहीं चलता था ना कि हम gratitude नहीं दे रहे. Yes, ma'am. Yeah. So first thing is that you becoming aware of it. That is the first step. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. Once when you are understanding, you are aware of it, that you're not doing gratitude. That is step number one. तो आधी battle तो आपने पहले ही जीत ली है. Yeah. Okay. So Yes, whenever you are able to catch yourself, the only thing to do is कि जब याद आ जाएगा उसी टाइम करना शुरू कर दो. क्योंकि gratitude तो आप कभी भी किसी भी चीज का करना शुरू कर सकते हैं ना. yes, जरूरी ma'am. अगर आपने खाने के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया और आपको याद आया अरे मैंने तो आज खाने के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो उस टाइम कुछ जो भी कर रहे हो उसके लिए करना शुरू कर दो, है ना. एंड Yes, रात जब दोबारा खाना खाना शुरू करोगे, रात को खा रहे हो या सुबह खा रहे हो, उस टाइम कर लेना. और या इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, विजुअलाइज अबाउट इट कि मैंने उस टाइम खाने से पहले नहीं किया था, तो थोड़ा पहले का सोच के उसके बाद उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो. So Okay, it's ma'am. not something that you feel कि अरे आज मैंने gratitude नहीं किया. Yeah. Yes, So ma'am. whenever you are reminded of it, start doing it. Yes, ma'am. क्योंकि हमारे आसपास तो इतनी चीजें हैं जिसके लिए हम gratitude कर सकते हैं ना. Yes, इतना ma'am. कुछ है हमारे पास. Yes, You ma'am. have to start looking for things. What are you grateful for? Yeah. Yes. And don't feel bad about it कि आज तो मैंने करा ही नहीं. Joint family में हूँ, challenges आते रहते हैं. वो challenges के बीच में करना यही तो, तभी तो challenges कम होंगे ना. Yes, ma'am. challenges के बीच में अगर हमको याद रहेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, तभी तो challenges कम होंगे. Yes, ma'am. अगर challenges पे फोकस करोगे तो क्या मिलेगा? Challenges. Yes. और अगर But ma'am, gratitude पे focus is going there only. It's so bad. I feel that my focus is getting diverted. तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अर्चना, और कुछ नहीं है. Yes, ma'am. Thank बिकॉज you, आदत ma'am. नहीं है हमें. देखो आप कितने साल के हो? I'm 35 years old. ओके. सो 35 इयर्स की जो आपकी कंडीशनिंग है दिमाग की, हमेशा ही हमारी जो कंडीशनिंग रही है वो नेगेटिव की तरफ जाती है. वो आप 2 महीने या 3 महीने में थोड़ी चेंज कर पाओगे. Yes, ma'am. It will take lot of effort. It will So take true, ma'am. lot of practice from your side. But Yes, ma'am. the good part is that you already started it. Thank you, ma'am. That is something to celebrate. Okay, now I'm aware of it. I've started it. And the more I practice, the more I will become perfect in this. I'll become master in this. क्योंकि practice से ही तो होता है ना सब कुछ. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. You're Thank you welcome. so much, ma'am. Anybody else has any question? और मुझे किसी ने नहीं बताया अभी तक कि आपने मॉर्निंग के किसी ने भी आज किया है कि नहीं? Ma'am, I did, ma'am. Ma'am, I did also. I also did. Good. और किसने किया मॉर्निंग का प्रैक्टिस आज? Please unmute and say. I did. Good, Varun. और किसने किया? I also did, I told you. हाँ, good. सिर्फ 3-4 लोगों ने किया. नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज से कर लेना और अभी से कर लो. जैसे ही सेशन खत्म होता है, सेशन के ड्यूरिंग भी कर सकते हो, सेशन के बाद से भी कर सकते हो. तो स्टार्ट डूइंग इट. और अगर आज सुबह उठते से नहीं किया है, भूल गए, तो कल सुबह उठते ही कर लेना. Because this is something which you can start doing every day. Okay, so who's going to read today's chapter? Please nominate your name. Ma'am, I'll read Archana. Is there And someone else also? Yeah, who is this? Male voice? That was me, Tarun. Okay, so Archana, let Tarun read today. Yes, ma'am. It's fine. Okay, yeah, Tarun. Thank you, Tarun. Yeah. All right, thank you. Day 12. Magical people who made a difference. Okay, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा, कुछ अच्छा हुआ.
या हम ऐसी जगह पे थे, जिंदगी के उस पड़ाव पे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है, तो उन्होंने हमें एक ऐसी डायरेक्शन दे दी, कुछ ऐसा कह दिया जिससे हमें डायरेक्शन मिल गई और हम अपने सही रास्ते पे चल पड़े। तो आज हम ऐसे लोगों के बातें करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी लाइफ में देखिए, मैं रिक्वेस्ट दर्शन जी प्लीज गो ऑन म्यूट। 2 महीने की लाइफ काट दो। 1 second, yeah. I think he's not. इतने लंबे बाल थे terrible. Give me a moment, guys. Tarun, you can unmute yourself and speak. Okay, ma'am. Yeah, You need to change the page. yeah, I'm just doing that. Okay, so let's begin the chapter. So what we are going to talk about is the people who made a difference in a life. वो आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, और बचपन में हो सकता है आपके पापा को कोई दोस्त हो, या आपकी मम्मी की कोई फ्रेंड हो जिसने कुछ बोला, या कोई आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, उसके फादर ने कुछ बोल दिया जो आपको टच कर गया और आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे गया। या आपके ऑफिस में आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई सीनियर हो सकता है, या कोई धर्म गुरु हो सकता है, या आप किसी को मानते हैं वो हो सकता है, या आपका ही कोई घर का बंदा हो सकता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई वर्ल्ड लीडर है जिसने किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोला और आप उसको सुन रहे हो और वो आपकी लाइफ बदल के चला गया। सो इट कुड बी एनीवन। सो आज हम पढ़ेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन दी। आज ही पढ़े। At times, our own light goes out and is rekindled by the spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Lighted the flame within us. Albert Schweitzer, 1875-1965. Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. ओके, तो ये जो कोटेशन है वो ये क्या कह रही है? वो ये कह रही है कितनी बार ऐसे होता है कि हमारे दिए की लौ कम हो जाती है। अब ये दिए की लौ कम होना क्या है? That you are feeling low, you are feeling confused, you are feeling ये होता है ना कि दो भागों में बट रहे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस सड़क पे चलूं या उस सड़क पे चलूं, मैं दोराहे पे खड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो ऐसी पोजीशन में जब आप होते हैं तो आपकी लॉ कम हो जाती है, आपका जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है, एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, यू आर कंफ्यूज्ड, आप डिलेमा में हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम पे अगर कोई आपकी लॉ को बढ़ा देता है, इफ यू रिमेम्बर, आपने जब दिए जलाते हैं, मतलब हम तो दिवाली पे ही जलाते हैं, तो मैं दिवाली का ही आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जब हम दिए जलाते हैं ना अपने वो आप जो क्या कहते हैं उसको दीवार के ऊपर लगाने के लिए, या आप नीचे लगाते हैं दिए, तो हम जब बहुत सारे दिए जलाते हैं तो क्या होता है, एक दिया जलाया उसकी ना लाइट धीरे धीरे आपको लगता है वो बंद बुझने वाला है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा दिया लेके जो जल रहा है उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, कि उसकी लौ के साथ उसको लौ को मिला देते हैं, तो वो दोनों ही भट करके जल जाती है और उसके बाद उसकी लौ तेज हो जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, कि जब आपकी लौ कम हो रही होती है तो अगर कोई और आके उसको रिकिंडल कर देता है और आपकी फ्लेम जो है वो ब्राइटर हो जाती है, आपकी जिंदगी में चमक आ जाती है, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाती है, या आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। आज ऐसे ही लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अभी आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जस्ट थिंक ऑफ सच पीपल। आपके दिमाग में कौन आ रहा है इस टाइम पे? मेरे दिमाग में कौन आ रहा है? आपके दिमाग में कौन आ रहा है? ऐसा कोई इंसान जिसने अभी रिसेंटली आपकी लाइफ को रिकिंडल किया हो। मेरे दिमाग में इस टाइम मेरा पार्टनर आ रहा है जिसके साथ मैं वर्कशॉप्स कर रही हूँ। So as far as my coaching is concerned, I'm doing one-on-one coachings. One-on-one coachings में you're not able to impact so many people. आप एक ही इंसान की जिंदगी में डिफरेंस कॉज कर पा रहे हैं। हाँ, if you're
causing a difference in a woman's life, तो उसकी पूरी family के ऊपर impact पड़ता है. That way, of course, you are impacting a family. But our mission or my, purpose of life is कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर सकूं, उनकी लाइफ को, उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस कॉज कर पाऊं, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, राइट? एंड this partner which जिसके साथ मैंने भी collaborate किया है, we have started Swavlamban together, that partner has come at the time when I was feeling यार मैं अकेली क्या करूं, मुझे कुछ चाहिए ऐसा कि जिससे मैं अपने काम को बढ़ा पाऊं, मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं. And that was the time he walked into my life. And we just started talking and we just clicked. वो हमारी thought process, हमारी ideology, हमारी spirituality सब match हो गई. वो एकदम से जैसे होता ना, we just gelled with each other and we started doing it. And उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ, we've already done one workshop, we are doing another one, we are doing a free master class. We are we came on national television yesterday. So everything has started working. जो मेरी बुझती हुई लो थी कि मैं अकेली क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से मैं लोगों को ढूंढ के लाऊं जिनकी लाइफ में मैं डिफरेंट कॉज कर पाऊं, how do I reach out to them? Yeah, उस टाइम पे his walking into my life has worked as मेरी बुझती लौ को नई रोशनी देने का काम किया उसने. So when I was just reading it, the first person who came to my mind was Sandeep. Yeah, so this is how you can start looking at it. आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या कौन था? इसका नाम फ्लैश हुआ. Yeah, let's read. Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. Okay, तो आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कंफ्यूज्ड हैं या आपको मोनोटोनस सी लाइफ चल रही है, इट्स लाइक अ रट, सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, एंड सडनली देयर इज अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. समबडी वॉक्ड इनटू योर लाइफ एंड उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको लगा हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग दैट, और आपकी लाइफ में एक नई एनर्जी आ गई, एक नई लाइफ आपकी जिंदगी में आ गई. ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ. When I was, my mother was sick. In 2010, she had seizure, and after that, she was bedridden. तो वही होता है ना कि चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, ऑफिस भी जाना है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, डॉक्टर को भी बुलाना है, एंड आई एम ऑल अलोन. कोई है नहीं, सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? तो कभी कभी होता है इंसान ना, यू गेट बॉक्ड डाउन बाय सिचुएशंस एंड challenges. So I was going through that, and मैं लैंडमार्क फोरम कर चुकी थी, बट आई आफ्टर डूइंग द फोरम आई वाज जस्ट गोइंग अराउंड माय लाइफ, एंड मेरी लैंडमार्क से एक लेडी का फोन आया, एंड शी सेड के व्हाई डोंट यू स्टार्ट कमिंग एंड डूइंग सम असिस्टिंग. आई सेड नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 7 days a week मेरा ऑफिस है, एंड संडे इज द ओनली डे आई गेट, एंड दैट इज द डे आई रियली वांट टू टेक रेस्ट एंड ऑल, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बिकॉज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है. एंड देन शी जस्ट सेड वन थिंग, कब तक मम्मी की बीमारी के पीछे छुपती रहेगी? She just said that and said, पूरा दिन के लिए नहीं आ सकती, 2 घंटे के लिए आ जा, you will feel good, and give a break to, जो तेरी एक साइकिल चल रहा है ना, विशियस सर्कल जो तूने बना लिया अपने आप, उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा. So give it a break, come for 2 hours on a Sunday. हर संडे नहीं आ सकती, एक संडे छोड़ के आ जा, but start doing something different. And the way she said it, उसने मेरे ऊपर कुछ असर किया, and I went on a Sunday for 2 days, for 2 hours, and that was the beginning of my journey. मेरी लाइफ उसके बाद बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई. I started regularly assisting and did more courses, and then went on to become a seminar leader. अगर मैंने वो स्टेप उस टाइम पे नहीं लिया होता,
तो लाइफ वैसी ही रहती जैसे तब चल रही थी या बहुत लोगों की आज भी चल रही है. But because that person, that lady who called me at that time and gave me that push, that nudge, कि 2 घंटे के लिए आ जा, वो 2 घंटे वाला जो नज था ना उसका, वो मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर गया. इस तरह से बहुत लोग हमारी लाइफ में आते हैं कि हमारी लाइफ के ऐसे ऐसे सिचुएशन पे या ऐसे पड़ाव पे वो हमें कुछ ऐसा बता देते हैं कि जिससे हमारी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. या लेट्स रीड. The person may have been a teacher, a coach, an uncle, aunt, Tarun, can you sibling. be a little louder, please? uh, the person may have been a teacher, coach, an aunt, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that becomes one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know and they appeared in your life with very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. हाँ, तो ये कोई भी हो सकता है कि अचानक आपको मिल गया, आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड मिल गया, आप यू वेंट टू मीट अ फ्रेंड, उसका कोई और फ्रेंड आया हुआ था वहां पे, एंड ड्यूरिंग डिस्कशन दैट पर्सन सेड समथिंग व्हिच एक्चुअली गिव यू अ डायरेक्शन. ऐसे हो सकता है ना. अब जैसे श्रुति है, आई मेट श्रुति इन वन ऑफ दीज मैजिक सेशंस ओनली, एंड सो आई जस्ट हैपेंड टू कॉल. आई सेड श्रुति कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नॉट बिकॉज आई वाज स्टार्टिंग दिस सेशन. And she said, मैं तो ऋषिकेश में हूँ and I'm really enjoying it here. And because of the lockdown and I was feeling so caged up, prisoned, मतलब ऐसा लग रहा था कहाँ फंस गई हूँ मैं, घर से निकल नहीं पा रही हूँ. And Rishikesh was not at all on my mind. I just was feeling too caged up at home, that's all. And she said कि इतना अच्छा मौसम है, and she showed me गंगा जी. She showed me a video, गंगा जी के पास बैठी है and all. That's all. मुझे अंदर से लगा मुझे वहीं जाना है, अभी जाना है. एंड शी केम बैक टू दिल्ली एंड लॉकडाउन तो अभी चल ही रहा था. जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स होने की न्यूज आई एंड आई जस्ट डिसाइडेड आई एम गोइंग देयर. एंड शी वाज इन दिल्ली एंड आई जस्ट टोल्ड हर आई एम गोइंग टू ऋषिकेश. शी सेड मैं भी चलती हूँ. एंड शी वेंट अ डे बिफोर मी. शी वाज instrumental in my taking that break, which was really badly needed. And it has given me a new lease of life. I have started looking at things in a different perspective now. And for her also, she's been thinking when she came to Delhi, she's been thinking of going. कि जाना, मेरी तबीयत यहाँ आके खराब हो रही है, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं जाना है. But that little nudge from me कि मैं जा रही हूँ, she reached there and she's still there. So ऐसे हमारी जिंदगी में कब अचानक कौन क्या बोल देगा जो हमें कुछ ऐसा दे जाएगा जो हमारी जिंदगी को बदल जाएगा. और ऐसे हमारे साथ हुआ है, लाइफ में बहुत बार हुआ है. अगर आप सोचने बैठोगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आएंगे आपको. हाँ जी, पढ़े. आपने जैसे श्रुति जी का नाम लिया तो she joined in. I saw notification she joined in. Yes, तूने चुगली कर दी मेरी, चुपचाप सुन रही थी. Yes, what Jagjeet said is so true. Right. I'm so grateful to Shruti. Yeah. Okay. हाँ जी, पढ़े. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. Okay, अब ये जरूरी नहीं होता कि कोई कुछ आके आपको बोलेगा या आपसे कोई बात करेगा तभी होता है. So I wanted to share this. In 2019 की बात है, I think 19 की बात है. I was Saturday था, मैं सुबह बैठ के ऐसे I was just going through my mails
And suddenly, मेरे personal mail पे there was this lady who had posted a video, and she had started a video on a word every week, how a word influences our life. हमारी जिंदगी में एक शब्द जब हम उसको अच्छे से समझते हैं, वो हमारी जिंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है. मुझे पढ़ा ना, मतलब वो वीडियो देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला. मुझे लगा हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया बात कर रही है. आई डोंट इवन नो हर. Yeah, and randomly something came on my mail and I just saw it, and it actually touched my heart and it gave me a direction. मतलब क्या डायरेक्शन दिया आप हंसोगे. मैं ऑफिस जा रही थी बिकॉज सैटरडे था. माय बॉस हैड कॉल्ड मी टू ऑफिस दैट डे, एंड मैं गाड़ी में जा रही हूँ, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है. सडनली मुझे लगा यार मैं भी बनाती हूँ वीडियो. जिंदगी में नहीं बनाई थी वीडियो. मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही एक वर्ड जो दिमाग में आया उसके ऊपर एक वीडियो बना दी, एंड आई सेंट इट टू पूरन. I hope many of you know Puran. Puran is a good friend of mine, and he said अच्छी बनी है but पीछे गाड़ियों की बहुत आवाज आ रही है, and किसी शांत जगह पे बैठ के बनाई है. And since it was a weekend, ऑफिस में तो लोग थे ही नहीं. मेरी बॉस ने मुझे ही बुलाया हुआ था, and some housekeeping and the facilities people were there. So वो facilities की एक girl was there, and I said सुन मुझे ना एक वीडियो बनानी है. And we sat in one of the cabins, and she shot my first video, and I just sent it to a couple of my friends, and I said very good, and for 21 weeks, every single week I made a video. I learned how to do the editing of a video. I started adding captions to it, music to it, and मतलब ये सब किया मैंने just because she inspired me. उसने एक word के ऊपर एक वीडियो उसने डाला, उसकी वजह से मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, and I got into making videos. Yeah, और अभी हम जैसे अपने वर्कशॉप को प्रमोट कर रहे हैं, तो I'm making videos, and it was so easy for me. There was no struggle, there was no challenge कि कैसे बनाऊंगी. या अगर अभी ये वाली भी वीडियोस हम बनाते हैं, तो इनिशियली मुझे पूरन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. पूरन मुझे इसको कैसे भेजूं, कैसे शेयर करूं सबके साथ. सो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्लाउड. अभी मैं इसको अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड करती हूँ, फिर इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, एंड देन आई एम एबल टू सेंड लिंक टू यू. This all happened because of that one single video which I saw one Saturday morning. Can you see how things change your life? And I am so grateful to that lady. Yeah. So like that, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा. Just start looking for it. हाँ जी, पढ़े. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave to me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today and sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Okay, so what you're supposed to do today is that you have to find a silent and ऐसी जगह जहाँ पे शोर नहीं हो. आपने ऐसे 3 लोगों के बारे में सोचना है, those extraordinary people जिन्होंने आपकी लाइफ को बदला. That could be your coach, you could be your mentor. क्योंकि कोच का काम भी यही होता है, मेंटर का काम भी यही होता है कि आप जहां पर स्टक हो, आपको कुछ डायरेक्शन दे देता है वो, और आपकी जिंदगी पलट जाती है, आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है. जैसे मैंने बताया, ऐसे मेरे बहुत सारे कोचेस हैं. मेरे लैंडमार्क के कोचेस हैं, मेरी लाइफ के कोचेस हैं, मेरे जिनको हम
एक महापुरुष थे जिनको हम मानते थे, वो है, और सबसे बड़े तो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं। ऐसे बहुत सारा है। कभी कभी ऐसे होता है कोई आप कथा सुनते हो, जैसे मैंने कल शेयर किया था कि मैं मस्कीन जी की कथा सुन रही थी और उन्होंने बोला कि सुबह उठते ही सबसे पहले इस चीज का शुक्राना करो कि आप जिंदा हो, आपको एक नया दिन मिला जीने को। एंड दैट हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ माय लाइफ। आई डोंट स्टार्ट माय डे विदाउट praying that thank you for giving me a new day. So that has become a part of my life. That has become a part of gratitude that I start my day with. So he was instrumental in that. He was not directly interacting with me, but कुछ ऐसा सुना, किसी का ऐसा सुना, हो सकता है सदगुरु का कुछ सुना आपने, हो सकता है संदीप माहेश्वरी का कुछ सुना, हो सकता है आपने मैंने कुछ कहा आपने ऐसे सुना। तो ऐसा कुछ भी है, जैसे मेरे एक कोच ने बोला था कि जब भी आप बोलो ना, before speaking, just check whatever you're going to speak, is it going to make any difference to the person's life जिससे आप बात कर रहे हो? अगर उसकी जिंदगी में इस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, then better shut up, don't speak. अभी कितनी बार मुझे बात ये याद आ जाती है, और मैं जब कुछ एवी जैबरिंग करने की कोशिश कर रही होती है ना, बेफजूल की बात करने लगती हूँ, आई चेक माई सेल्फ, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? नो, देन कीप क्वाइट, जस्ट कीप स्माइलिंग एंड जस्ट कीप लिसनिंग टू द पर्सन। जरूरी नहीं है आपको हमेशा बोलना जरूरी है, सुन लो उसको, वही बहुत है। you know that listening, I've learned it from another coach, that listening is the most important part of the communication. हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, नो, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग, कि आप कितने अच्छे से उसको सुन पा रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम माय कोचेस, व्हिच हैज गिवन डायरेक्शन टू माय लाइफ, माय रिलेशनशिप्स। सो इसी तरह से आपको भी सोचना है, ऐसे कौन से 2-3 ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के कोर्स को डिफरेंट डायरेक्शन दे दिया आपकी लाइफ को। ऐसे 3 लोगों के बारे में आपने सोचना है, और इस तरह से बात करनी है as if they're sitting in front of you and you're just chatting with them. Yeah, you can speak to them loudly or just think about it as if you're mentally talking to them. Yeah, please. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Okay, तो ये अगर आपको याद होगा जब हमने रिलेशनशिप के बारे में भी किया था, तो वो 3 फोटोग्राफ्स जो थी, वहां पर भी हमने बोला था कि तीनों फोटोग्राफ्स को लेकर जब आप उनके बारे में 5-5 अच्छी चीजें लिखोगे तो एक ही बार में लिखना है। और यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जब भी आपने 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचना है, तो आपने एक ही बार एक ही सेशन में करना है, यू डोंट हैव टू स्प्लिट इट। और रीजन क्या है उसका? क्योंकि जब आप एक के बाद एक तीनों के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने ग्रेटिट्यूड की डेप्थ को बढ़ाएंगे, आपकी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और वो इंटेंसिटी जो है वो फीलिंग्स है आपकी, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आपकी फीलिंग्स की बढ़ेगी, उतना ही मैजिक को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जितनी इंटेंसिटी के साथ आप ग्रेटफुलनेस होगी, आप में ग्रेटिट्यूड होगा, उतनी ही ग्रेटिट्यूड वाली चीजें और आपकी लाइफ में आएंगी, जिसके लिए आप और ग्रेटफुल हो सकते हो। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइफ में, उस मैजिक को अपनी लाइफ में लाने के लिए, वैसे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपको एक ही बार में तीनों के बारे में ये जो एक्सरसाइज है, आपका जो असाइनमेंट है वो करना है, राइट? ओके, प्लीज कंटिन्यू। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah.
ओके कितनी बार ऐसे होता है ना, हम लाइफ में सोच रहे होते हैं यार मेरा दिल तो कर रहा है मैं ये करूं, जैसे यू नो व्हेन चिल्ड्रन आर इन 12th, उनको कॉलेज जाना है, तो उनका मन है, मान लो किसी का मन है मुझे कॉमर्स लेनी है, या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मुझे कुछ यू नो समथिंग डिफरेंट करना है फ्रॉम व्हाट यू नो द पेरेंट्स आर सेइंग। या जैसे मान लो पापा ने बोला तुझे ना तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं यार, इंजीनियरिंग कर ले। वो बच्चा कह रहा है मुझे इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग में, या मुझे तो कुछ और करना है। मतलब मान लो उसको कोडिंग में इंटरेस्ट है, वो कहता है मुझे तो कोडिंग में काम करना है, या मुझे गेम्स बनाने हैं आईटी में, यू नो ठीक है मुझे शौक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे शौक है उसमें, मैं आईआईटी में मुझे एडमिशन भी मिल जाएगा, मेरे बड़े अच्छे मार्क्स हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, मेरा मन ही नहीं है वहां पे। माय हार्ट इज दैट आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस which will impact so many children, it will impact so many people, so I want to do this। मुझे वो नहीं करना है, और वो माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकते, बिकॉज माँ बाप कहते नहीं तुझे यही करना है, तुझे क्या पता, जिंदगी हमने देखी है, तुझे क्या पता क्या चीज चलती है क्या नहीं चलती है, क्या सारी जिंदगी यही करने वाला है तू, पैसा कैसे कमाएगा, घर कैसे चलाएगा, आगे चल के आगे कैसे बढ़ेगा। तो माँ बाप अपने हिसाब से उनको अपने पर्सपेक्टिव से समझा रहे होते हैं, बच्चे का मन नहीं है वहां पे जाने का। जैसे कल श्रुति हमारे इंटरव्यू में शेयर कर रही थी, देयर वाज अ गाय हु, उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे एमबीए कर ले एमबीए कर ले, एंड ही डिडंट वांट टू डू एमबीए, ही वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो उसने एमबीए का फॉर्म ही चेंज कर दिया। उसने कहा माँ बाप की आशाएं या माँ बाप की आस्था, फिर माँ बाप जो चाह रहे हैं ये वो है एमबीए। एमबीए इज दैट, इट्स नॉट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई मीन एट दैट पॉइंट इफ समबडी टेल्स यू नहीं बेटा, यू फॉलो योर हार्ट, जो तेरा मन करता है तू वही कर, एंड आई एम स्टैंडिंग विद यू। मान लो आपके पापा कह रहे हैं, आपके घर के बाकी सब बोल रहे हैं नहीं तू इंजीनियरिंग कर, तो फ्रेंड्स सारे बोल रहे हैं इतने अच्छे मार्क्स हैं, तेरे को इतनी आसानी से आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, एंड देन योर फादर सेज और योर मदर सेज नहीं बेटा, यू डू व्हाट योर हार्ट सेज, बाद में पछताने से फायदा नहीं है। फिर जब 3 साल या 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर तूने अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज किया, यू विल बी लूजिंग 4 years। सो यू फॉलो योर हार्ट, जो तेरा मन करता है तू वही कर। तेरे को पेंटिंग सीखनी है पेंटिंग सीख, तुझे अगर कोरियोग्राफी में जाना है, तेरा मन कोरियोग्राफी में है तो उसमें जा, तेरा मन कुछ और करने को है, जस्ट फॉलो योर हार्ट। एंड यू नो यू आपने वो एडवाइस मान ली अपनी माँ की अपने फादर की, एंड यू जस्ट started doing what you enjoy doing, and after a period of time like you're so happy in whatever you're doing, and then you think back and say यार उस टाइम पे अगर मेरे को ये सपोर्ट नहीं मिला होता, या उस टाइम पे मुझे ये नहीं बोला होता उन्होंने कि नहीं तू अपने मन की कर ले, तो शायद 4 साल के बाद में आज भी कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहा हो रहा और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता, ये करना मुझे ये था और करा मुझे ये दिया। यू नो व्हेन आई वाज इन लैंडमार्क, इतने इतने लोगों के साथ ये किस्से हुए हैं। I remember there was a guy who was a very senior executive in an MNC, and लोगों के हिसाब से तो वाह उसकी क्या जिंदगी है, इतना अच्छा पे पैकेज है, इतनी अच्छा डेजिग्नेशन है, इतनी अच्छी कंपनी है, और उसके बाद he is going to places, he's going to different countries for meetings and all that, but everything is going for him, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घर है, but that guy was so अंदर से इतना बुझा हुआ था, and he said my father forced me to get into this, I never wanted to do this, I wanted to get into dramatics, मुझे थिएटर करने का बहुत शौक था, पर मुझे उन्होंने इसमें डाल दिया। Can you believe it? At the age of 42, when he found what he wanted to do and what is his calling, what is his passion, what will give him happiness and satisfaction, he switched his career at 42. देखो कितना टाइम वेस्ट हो गया उसका, but still gratitude that at that age also he could follow his heart. किसी ने उसको वो डायरेक्शन बताई कि अगर तू खुश नहीं है तो क्या फायदा इस जिंदगी जीने का, जिस चीज में सेटिस्फैक्शन, अलाइवनेस, हैप्पीनेस, जॉय नहीं है तो क्यों कर रहा है। सो somebody gave him that ना, वो नज उसको मिल गया उस टाइम पे, एंड ही जस्ट चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ एंड ही सो हैप्पी, एंड नाउ ही इज प्रोड्यूसिंग प्लेज,
एंड उसके मुझे काफी बार मैसेजेस आते रहते हैं दैट वी आर डूइंग दिस प्ले एंड ऑल. आजकल तो खैर ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, आजकल सिर्फ ट्रेनिंग्स ही चल रही हैं उसकी. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ हो जब आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इधर से भी लोग खींच रहे हैं, कोई इधर आपको धकेल रहा है, कोई उधर धकेल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. उस टाइम पे अगर आपको किसी ने ऐसी डायरेक्शन दी जिसकी वजह से आप जहां आज हो आप वहां हो, सो दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट दिस. जैसे उसने लिखा कि आपने मुझे उस टाइम पे जो मुझे बोला कि अपने दिल की बात मान, और मैं यहाँ आ गया और मैं एज अप्रेंटिस शेफ आया, पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी, अपनी ड्रीम की जिंदगी जी रहा हूँ. या सो थिंक ऑफ सच पीपल एंड दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट और से. आपको सोचना है तो आप सोचते टाइम भी यही इस तरह से ही बोलना है आपको. हाँ जी. It's very important that you say the reasons why you're grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. ओके, ये बुक ना बार बार कहती है कि आप कभी भी टू मच ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते हो. अगर आप सोचो यार सुबह से शुरू करा मैंने ग्रेटिट्यूड करना, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड, आज तो मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया. ओके, आपने अपने कंपैरिजन से कल से ज्यादा किया, सो इट्स गुड. बट कभी भी इतना नहीं हो सकता कि आप बोलो यार टू मच हो गया है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो टू मच कभी हो ही नहीं सकता. आप किसी भी एरिया में ले लो, कभी भी टू मच हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना मिला है कि हम जितना भी करेंगे कम ही पड़ेगा. सो अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसको ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, you have to say why are you grateful. Like if I say I'm grateful to Shruti because I had such a wonderful time, I was full of positivity when I was in Delhi. मेरी एनर्जी लेवल इतना कम हो चुका था कि मेरा पार्टनर मुझे फोन पे कहता था जगजीत तुझे हुआ क्या है, तेरी एनर्जी इतनी नीचे क्यों जाती जा रही है, डू समथिंग अबाउट इट, डू समथिंग अबाउट इट. बट आई वाज फीलिंग सो, समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में. आई वाज सो लो ऑन एनर्जी. एंड ऋषिकेश जाके I got a new lease of life. I'm full of excitement. I keep thinking about वो वहाँ का जो व्यू था, जो वहाँ की हवा थी, and every time I think about it, it just rejuvenates me. So I am grateful to Shruti for giving me that experience, for pulling me out of that dump जहाँ मैं गिरी हुई थी, वो जो मैं एकदम से नीचे एनर्जी लेवल मेरा डाउन, एंड आई वाज फीलिंग लो, आई वाज फीलिंग डिप्रेशन टाइप का ही हो रहा था मुझे कि क्या है, 2 महीने से घर पे पड़े हैं, कहीं जा नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते. सो आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर गिविंग मी दैट न्यू लीज ऑफ लाइफ. सो व्हेन आई से दीज थिंग्स आई फील ग्रेटिट्यूड विद इन. और आई कैन जस्ट से थैंक यू श्रुति, तूने मुझे वहां पे दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आ गई वहां पे. सो यू कैन सी द डिफरेंस व्हेन आई से दैट एंड व्हेन आई फील एंड से दैट मुझे क्या मिला वहां जाकर, किस वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ. एंड जितना भी आप बोलोगे कम है. लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बोलना शुरू करूँ, वो 5 दिन मैंने वहां पे क्या क्या किया, मुझे क्या क्या मिल गया वहां जाके, तो मैं पूरा आई थिंक 5 पेज लिख सकती हूँ, 6 पेज लिख सकती हूँ उसके ऊपर, श्रुति को ग्रेटिट्यूड करते करते. सो देयर इज नॉट इनफ, टू मच नहीं होता है कुछ भी. अब ये too much हो रहा है जगजीत. No, Gratitude is to the gods, no, the universe. it's not too much, because this today's chapter is about such people who have made a difference in your life. So right now whatever is coming to my mind is you and Sandeep, so I just shared about that. So that is why I wanted to say, and this was only to make people understand कि कैसे लिखना है या कैसे बोलना है. और उसका जब भी आप सोचो कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा कभी भी नहीं होता. जितना भी आपके मन से निकलेगा और जितना फील करके बोलोगे, वही आपकी लाइफ में मैजिक लाने वाला है. मैं गंगा दर्शन करा देती हूँ सबको. हाँ, मैंने देख लिया. I see that. Yeah, others can also see. She's showing you Ganga. Yeah. श्रुति जी, आप कितने लोगों को ऋषिकेश बुला रहे हैं? He's telling everybody to come.
Sabha. Yeah, गंगा Tarun, please दर्शन। continue. जो नहीं आ सकते वो फोन पे मेरे से गंगा दर्शन ले लो। Yeah, Tarun, please continue. If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. हाँ, तो अगर आप ऐसे, अगर मतलब जैसे रोल प्ले करते हैं, अगर आप रोल प्ले नहीं कर पा रहे हो कि आप एक साइलेंट प्लेस पे बैठ के आप उनसे ऐसे बात करो जैसे वो आपके सामने बैठे हैं, तो अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो, देन आपकी जो जर्नल है जिसपे आप रोज अपने असाइनमेंट्स करते हो, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हो, आप उसमें भी लिख सकते हो, एंड यू हैव टू राइट इट एज इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू देम। या और वैसे तो आजकल लोगों को लेटर लिखने की आदत नहीं रही है, तो बट लेटर इज वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, क्योंकि जब आप चिट्ठी लिखते हो ना, आपके दिल की सारी भावनाएं पेन पेपर पे आ जाती हैं। आई रिमेम्बर हमारे एक महापुरुष थे जिनको हम बहुत मानते थे, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई, उनकी प्रेयर से आई थी, बिकॉज मैं 10 साल के बाद आई थी दुनिया में मेरे पेरेंट्स की शादी के। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब भी आप मुझे चिट्ठी लिखते हो, नेवर राइट अ लेटर ऑन वो होता था ना पोस्ट कार्ड पे मत लिखो, हमेशा ऐसे लेटर पे लिखो जो फोल्ड होके बंद होता है। जब आप उसको इनलैंड लेटर पे या लिफाफे में डाल के भेजते हो, तो जिन भावनाओं के साथ आपने वो चिट्ठी लिखी है, when I open it, I actually get all those vibrations. तो चिट्ठी जब आप लिखते हो ना, तो आप अंदर की पूरी भावनाओं को उड़ेल देते हो। तो जब आप लिखोगे, तो write it as if you're writing a letter. Yeah, and don't look for the correct words और grammar ठीक है कि नहीं है, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, जो आता है लिख देना, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखना लिख देना, आपकी जो कोई अपनी भाषा है उसमें लिखना उसमें लिख देना, नो इश्यूज एट ऑल। द ओनली थिंग इज भावना अंदर से आनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। या डोंट गेट इनटू ऑल दिस कि मैं कैसे लिखूं, कौन सी भाषा में लिखूं, वर्ड्स ठीक है कि नहीं, कौन सा वर्ड यहाँ पे अच्छा लगेगा, डोंट डू ऑल दैट। जो अंदर से आता है बस लिखते चले जाओ। या प्लीज रीड। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you feel happy. ओके, The वन second, सेकेंड पॉज। सो अभी मैं जब श्रुति को थैंक यू बोल रही थी, श्रुति के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे थे, हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड द डिफरेंस इन माय एनर्जी लेवल? Did anybody Yeah. did Yes, anybody you were feel? more We excited. did. You were more joyful. Yeah, so this is what it says कि जब आप ये करते हो, उसका फर्स्ट एविडेंस क्या है? That you feel happy. And I am feeling happy when I'm talking about that. I am feeling happy. So you saw that right now. कि जब मैं पहले जब बुक के बारे में बात कर रही थी और जब मैं अभी ग्रेटिट्यूड कर रही थी श्रुति को, उसके बाद there's a shift in my energy level. I'm feeling much more happier. My energy level has gone up. So this is visible in front of you right now. Hanji, पढ़ेंगे. the secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. हाँ, तो first you became happy. अब जब happy हैं, तो क्या attract करेंगे? क्या attract करेंगे? More If you're happiness. happy, More yeah, happiness. yeah, you will attract more happiness. And when you are happy, I think शायद अभी वो आया नहीं है, happiness plus gratitude, joy plus gratitude makes you a magnet. वो आपको एक मैजिकल, एक मैग्नेटिक फोर्स बना देता है जब आप खुश होते हो और उसके साथ ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हो। तो वो एक कॉम्बिनेशन वो है ना, वो इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जो चाहते हो वो अपने आप आपके पास खिंचता चला आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ मैजिक, दैट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो लेट्स रीड टुडेज प्रैक्टिस।
I'm feeling so excited. हाँ जी पढ़े. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Find a quiet place alone sometime during the day and make a list of 3 people who made a difference in your life. Okay, pause. So first, of course, you know क्या करना है. आपको अपनी 10 blessings लिखनी है जो आप अभी तक लिखते आ रहे हो. The other thing, the second point it says find a quiet place sometime during the day and make a list of 3 people. तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ना पूरा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं. ये कर लो, वो कर लो, ऑफिस का काम, घर का काम. कभी भी आप अकेले में अपने साथ बैठे हैं? Tell me, how many of you have experienced that you are sitting alone by yourself? Has anyone experienced that? Yes, ma'am, I do. Okay, who else? You know, this is very powerful. अगर आप अपने साथ बैठते हो ना, and you reflect, आप जब अकेले बैठते हो तो खाली तो बैठोगे नहीं, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा. But if you're doing practice of gratitude ना, तो जब आप अकेले बैठोगे ना, तो आपको ना ऐसी चीजें अपने बारे में समझ आएंगी. आप अपने अंदर डीप डाइव, कहते हैं ना कि you can dive deeper inside you. आप अपने अंदर झांकना शुरू कर दोगे और आपको ऐसे ऐसे मोती अपने अंदर मिलेंगे जिनके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है. That you have that power inside you, कि आपके अंदर वो ऐसे ऐसे मोती, ऐसे ऐसे nuggets छुपे हुए हैं. So if it is possible, जैसे आप ये वाली प्रैक्टिस करने के लिए क्वाइट प्लेस पे अकेले बैठोगे और सोचोगे इन 3 लोगों के बारे में और ये प्रैक्टिस करोगे, going forward, start sitting with yourself. Start with 5 minutes, 10 minutes, जितनी देर भी अकेले बैठ सकते हो. जो दिमाग में आ रहा है आने दो. Don't try to control. Just sit by yourself. आपको इतनी हैरानी होगी कि आपके जितने confusions हैं, आपकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको उनके रास्ते, उनके सॉल्यूशंस अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे. The only thing is tap inside you, deep inside you. तो आज ये वाला प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश करना कल से, आज तो इसी पे फोकस करना, कल से कोशिश करना पूरे दिन में 5 मिनट किसी क्वाइट प्लेस में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, म्यूजिक नहीं हो, बच्चे नहीं चिल्ला रहे हो, सड़क का कोई माहौल, आवाजें नहीं आ रहे हो, कोई एक क्वाइट कॉर्नर ऑफ योर हाउस. आज से उसको अपनी एक, वो कहते हैं ना, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, कि आपकी वो एक सेफ प्लेस है आपका, जहां पे आप जब भी आपका मन करे आप जाके बैठ जाओ. ऐसा एक सेफ कॉर्नर अपने लिए अपने घर में ऐसा एक ढूंढ लो कि जब आपका मन करे कि मुझे अपने साथ बैठना है, जस्ट गो एंड सिट इन दैट प्लेस, क्वाइट प्लेस, ऐसा ढूंढ लो. एंड एवरी डे स्टार्ट सिटिंग, इवन इफ इट इज फॉर 5 minutes. Start with 5 minutes and you will find immense power and immense difference happening in your life. And this is not from the magic, ये तो मेरे ऐसे दिमाग में आ गया, मैंने शेयर कर दी. But this is very, very powerful. हाँ जी, पढ़ें. Point 3. Work through the list one person at a time. And while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Yeah. Point 4. तो आपने पढ़ा है इसमें चैप्टर में कि आपको किस तरह से लिखना है या किस तरह से बात करनी है. आपने 3 लोग ऐसे ढूंढने हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ डिफरेंस कॉज हुआ, किसी भी एरिया में हो सकता है. एंड आपने उनसे ऐसे बैठ के बात करनी है जैसे आप उनके सामने बैठ के बात कर रहे हो, और उनको कहना क्या है कि आपने उसको थैंक यू बोलना, किस वजह से बोल रहे हो आप, क्या हुआ था, या आपने वो उनसे बात करनी है. और अगर आप बात नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि नहीं दिस टू मच ऑफ नॉइज, और कोई मुझे सोचेगा पागल है,
अपने आप से बातें कर रहा है या कर रही है, कुछ भी आ सकता है दिमाग में, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट राइटिंग इट इन योर जर्नल। आप अपना जर्नल लेके वहां बैठे और उसी तरह से जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, आप उनको लिखें कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल है, क्या हुआ था जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में इतना डिफरेंस कॉज हो गया, आपकी जिंदगी पलट गई या आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया मिल गया या नया डायरेक्शन मिल गया, तो आपने वो लेटर लिखना है और तीनों का एक ही बार में लिखना है, पूरे दिन में स्प्लिट करके नहीं लिखना है। उसका रीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द रीजन। हाँ जी। Point number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. ओके, सो लास्ट में आपने क्या करना है, मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो आप पहले से रोज से कर रहे हो, एंड पूरा दिन अपना स्कैन करके मैजिक रॉक हाथ में पकड़ के जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोल के इसको साइड में रख के सो जाना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? Yes, ma'am. आस्क राइट नाउ। हाँ जी, So, ma'am, in this magic practice exercise today, हाँ it जी, it has not been said that you write those things for that person. You can look at the photo or something like that and can talk to that person also. नहीं नहीं, Right? फोटो के बारे में नहीं बोला इसमें, मतलब इसमें फोटो नहीं है इसमें आपने इमेजिन करना है कि वो बंदा आपके सामने है और आप उनसे बात कर रहे हो। अगर आप बोल के बात कर सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हो तो आप मन से बात कर सकते हो, जैसे आप मेंटली किसी से बात करते हो। इमेजिन करो दैट पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग टू दैट पर्सन। और वो भी नहीं होता तो आप अपने जर्नल में जैसे लेटर लिखते हैं, आपने उनको एक लेटर की तरह लेटर लिखना है कि क्या हुआ था और उन्होंने क्या कहा था जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में क्या डिफरेंस हुआ। या And ma'am, one more thing, you said do the talk about these three people together, like one by one. तो आपने कहा इससे ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, तो मतलब वो बात आपकी ठीक है, बट लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसके लिए सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड आएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेटिट्यूड उसके लिए नहीं आएगा, ग्रेटिट्यूड आपका भर जाएगा, आपकी इंटेंसिटी ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर उसके लिए बढ़ भी जाएगा तो कोई नुकसान थोड़ी है। नहीं, नुकसान नहीं है, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि फर्स्ट तो लोगों के लिए तो कम हो जाएगा फिर, क्योंकि उनसे बढ़ना शुरू होगा ना। तरुण, आप लॉजिक से बात कर रहे हो, लॉजिक तो चलता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, लॉजिक से बात कर रहे हो, लॉजिक तो चलता ही नहीं है। यहाँ सिर्फ मैजिक होता है। या sure, thank you. Doing any stretches for some time? श्रुति, कैन यू बी ऑन म्यूट प्लीज? Oh, I'm so sorry. मेरा खुल गया क्या? So sorry. Anybody else has anything else to share or ask question? जगजीत जी, अभी जैसे आपने बोला कि जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो और उसका आपको यू फील हैप्पीनेस फ्रॉम द इनसाइड, सो लाइक मैं जैसे आज मैंने स्पेशली नोट करा था व्हेन आई वाज इन द मॉर्निंग में, जब बाथरूम बाथ के टाइम पे, शॉवर के टाइम पे, तो आई थॉट अबाउट 10 थिंग्स, बट उसके बाद में मुझे एक चीज जो मैं लाइक I would say one particular thing, if I'm using from last 10-12 years, and उसके लिए अचानक से मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड आया। oh my god, this particular oil has helped me from last, वहां पे जाके मेरे को खुशी आई। तो does it mean कि जो पहले जो मैंने सारे ग्रेटिट्यूड करे उस वहां से खुशी नहीं मिली, या what is it, what was the difference, like I'm trying to understand. There's no difference. किसी चीज के लिए हम लोग बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, किसी के लिए अभी हमने शुरू किया है। सी वही है ना कि गड्ढे कितने भरे हैं, हो सकता है उस ऑयल के लिए आपने बहुत सारा कर चुके हैं, आप मन ही मन में आपने जब भी लगाया आपने यू फेल्ट गुड अबाउट इट एंड यू डिड नॉट से इट बट यू फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। वो हैप्पीनेस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब आपके गड्ढे ज्यादा भर चुके हैं, तो आप जब उस लेवल पे आ जाते हो तो ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ गया ना आपका, और बाकी चीजों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड अभी देना शुरू किया, तो वहां पे आपका जरा सा शिफ्ट होगा फीलिंग में, पर जहां ज्यादा हो चुका है वहां ज्यादा होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि आपने कितना ग्रेटिट्यूड उस एरिया के लिए या उस चीज के लिए किया है अब तक।
So कुछ ऐसा है क्या लाइक जिसके लिए और करना है उसको ज्यादा ग्रैटिट्यूड दे या जिसके हाँ लिए बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड इसीलिए तो करते हैं हम. That's why each chapter is dealing with one particular area of life. अगर हमें मनी के लिए करना है तो हम मनी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. अगर हमें अपने हेल्थ के लिए करना तो हम हेल्थ को रोज कर सकते हैं ना. अगर मान लो मुझे अपने आईज ठीक करनी है तो मैं अपनी आईज के लिए रोज कर सकती हूँ. मुझे अपने घुटने ठीक करने हैं तो मैं अपने घुटनों के लिए रोज कर सकती हूँ. या तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया में आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए. Then you will have to start increasing that. ओके अब आपको उस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा अपना. कि आपने 10 रोज लिखने हैं और 10 दिन तक लिखने हैं, 1 हफ्ते तक लिखने हैं. कुछ मूव हुआ, ओके, इसका मतलब कुछ गड्ढे भर गए, अब और करना है मुझे, 10 दिन और करूंगी, यू नो, लाइक दैट. सो यू हैव टू कीप मेकिंग दैट बैलेंस कि कितना हो गया, कुछ इंप्रूवमेंट हो गया, गुड, मुझे इसमें और करना पड़ेगा अभी. दैट यू सो हैव ये टू चेक योरसेल्फ. 7-10 डेज का फंडा क्या है कॉन्सेंट्रेटिव ग्रैटिट्यूड का लाइक There is no funda as such. The only thing is कि अगर आपको concentrated gratitude करना है तो minimum 7 days करो. ओके Minimum 7 days करो, क्योंकि 3-4 दिन में वो उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ती नहीं है. तो जब आप 1 हफ्ता करते हो लगातार तो उसकी इंटेंसिटी जो है ग्रेटिट्यूड की बढ़ जाती है. एंड एट दैट टाइम यू कैन जस्ट सी कि कितना मूव हुआ आपका वो एरिया. और अगर थोड़ा सा मूव हुआ है तो दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना रहता है उसमें. So then you can increase it again. Okay. तो अगर आप पहले से वरुण प्लीज गो ऑन म्यूट. या अगर आपने पहले से महीना सोच लिया ना कि मैं 1 महीना करूंगी तो आप कर नहीं पाओगे, छूट जाएगा. सो टेक अ स्मॉलर गोल. आप 7 डेज का लो, उसके बाद 7 डेज के बाद आपको लगता है तो अनदर 7 डेज का लो. सो दैट वेज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप एंड यू गेट इनटू प्रैक्टिस. अगर सीधा आप 1 महीना लिखोगे ना तो आपको लगेगा हाय इतना बड़ा 1 महीना करना पड़ेगा, कैसे करूंगी, आज तो नहीं होगा मुझसे. बट अगर आपको करना 7 डेज, 7 दिन तो हो जाएगा, यू नो, लाइक दैट. सो दैट इज द होल फंडा, और कोई फंडा नहीं. इट ओनली हेल्प्स यू इन बिल्डिंग दैट प्रैक्टिस, उसको एक हैबिट बनाने के लिए. या आई वाज थिंकिंग ऑफ वही एमबीए और ऑफिस के लिए सुबह अगर मुझे लिखना है देन आई शुड थिंक अबाउट कंटिन्यूअस 7 डेज ताकि समझ में आए. ओके थैंक्स. You're welcome. Anybody else has any question? Ma'am, these concentrated gratitude we can write anytime or we have to write in the morning only? Throughout the day you can write it. Okay, ma'am. And ma'am, one more thing, like if we want to give concentrated gratitude to like more challenges, I'm doing for one thing. If I want to do for one more, can I do that? Of course you can. Okay, okay. And If it you should can- be written, verbal nahi hona chahiye. No, it should be written. And then after writing it, you have to read it again. Okay, yes, ma'am, I do that, ma'am. And say thank you 3 times. Thank you for the Like you do it perfect for blessings. resolution. Yeah, Like yeah. you do it for your 10 blessings. Yeah, I do that, ma'am. Thank you for the perfect resolution. I write that. Good. Thank तो you, आप ma'am. सुबह ब्लेसिंग्स की जगह ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड पे लिख सकते हैं राइट. नहीं, व्हाटएवर blessings नहीं. अलग है. Blessings तो करना ही करना है. Blessing to Oh, की है, that is- करना ही है. Concentrated gratitude is something which is additional. But blessings you have to do. अच्छा 30 डिफरेंस क्या days है तो करना if ही you है. look हाँ वो नहीं मैं वैसे अंडरस्टैंड कर रही हूँ. हाउ डू यू सी डिफरेंस इन ब्लेसिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड. See, this 30 days का blessings का अगर हम लिख रहे हैं तो it is actually making you get into a practice of writing it. इसलिए हम बोलते हैं कि जिस तरह से बुक कह रही है आप बिल्कुल exactly वैसे ही करो, क्योंकि then you get into the practice of writing gratitude. अब अगर आप Okay. बीच में concentrated करना शुरू कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो आपका concentrated वाला जब पूरा हो गया ना, आपने छोड़ देना करना. आप concentrated gratitude जिस चीज के लिए कर रहे हो उसमें आपको जो भी डिफरेंस कॉज करना है आपको वो दिख गया तो यू विल स्टॉप डूइंग कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड ऑब्वियसली ना. और आपकी ब्लेसिंग्स तो छूट ही गई है पहले से, तो आपका छूट जाएगा. ओके ओके गॉट So इट. this is to get into practice of writing blessings every day.
And ma'am, what I feel is like concentrated gratitude is given to a thing where we are facing challenge, Yes, and blessing is something which we get every day and every yes, time. yes. And concentrated gratitude is also for people जिसके लिए आपने कुछ नेगेटिव सोचा तो आप उसके लिए उसी Yes, टाइम ma'am. 10 gratitudes लिखते हो, तो that is also concentrated gratitude. और any area of your life जिसमें आप बहुत blame करते रहते हो और आपका वो area काम अच्छे से नहीं कर रहा है, so then you start writing concentrated gratitude. Yeah. Okay. Thank you so Anybody much, else? ma'am. You're welcome. Anybody else has any question? Okay, I want a couple of you to share what is your greatest takeaway from today's session. आज के सेशन से ऐसा क्या मिला आपको जो आप लेके जा रहे हो अपने साथ? Ma'am, for me, Tarun speaking, Yeah. from this session, I would say that, if I do not attend a session like जैसे मैंने कल वाला नहीं किया था, but I then wrote those 10 things for me. But थोड़ी सी I guess की feeling है ना कम हो जाती है, the gratitude वाली जो once you attend a session, you are more vibrant, more full of energy, and then when you write it, so it becomes like more जल्दी से कन्वर्ट होती है चीजें, आई थिंक सो. तो तो यहाँ पे आके आप चार्ज हो जाते हो. हाँ, चार्ज हो जाते हैं, यू कैन से, या दैट इज द राइट वर्ड. Yeah. मैं भी चार्ज हो जाती हूँ यहाँ के. हाँ, नहीं तो अपने आप सुबह सुबह बैठ करके ना, मतलब इट बिकम डिफिकल्ट वो उतनी इंटेंसिटी के साथ यू आर नॉट एबल टू राइट एट टाइम. Yeah, thank you. Who else would like to share? Ma'am, your words are really remarkable for me, ma'am. I really listened it very nicely. And when you said that, ma'am, happiness plus gratitude makes you magnetic. Yeah, it is. That is like, I was trying to imply it. It has really made a difference to my life. So I don't know whether you have read Power. So Power में भी है और इसमें भी है कि जितना आप खुश रहते हो, जितना आप पॉजिटिव फीलिंग्स में रहते हो, और उसके साथ जब आप ग्रेटिट्यूड ऐड कर देते हो ना, तो यू बिकम मैग्नेट टू वॉट एवर यू वांट इन योर लाइफ. आप जो चाहते हो वो होता चला जाता है आपकी लाइफ में. तो इसीलिए मैंने वो फीलिंग्स चार्ट भी शेयर किया था. If you can have a yes, look at it. Yeah. Ma'am, you won't believe I'm. Yeah. Yes, ma'am. या तो जो नीचे वाले फीलिंग्स हैं वो सारे ब्लैक से लिखे हुए हैं, दे आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स. बीच में एक हल्की सी लाइन है, उसके ऊपर सारे व्हाइट वाले में लिखे हुए हैं, दीज आर ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स. तो आप जितना पॉजिटिव फीलिंग्स में रहोगे और ग्रेटिट्यूड में रहोगे, उतना ही लाइफ आपकी जो है मैजिकल होगी. जो चाहोगे वो होता चला जाएगा. पर जितना हम नेगेटिव फीलिंग्स में रहते हैं, अगर आप अपने आप को चेक करना शुरू करोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग को नीचे वाले पोर्शन में होते हैं. तो आप जो भी चीज कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में बोला था कि 1 महीने के लिए आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना है कि आपको किस तरह से अपने आप को खुश रखना है पूरा टाइम. या सो इफ यू कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड यू पे ग्रैटिट्यूड, यू बिकम अ मैग्नेट. यू बिकम अ मैग्नेटिक फोर्स. जो आप चाहते हो उसको पुल करके आपके पास ले आएगा. हाँ जी. या एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? Ma'am, I'm trying to work on this. That is why universe is giving me way. वो तो And you हमेशा are हेल्प करता also है. telling. यूनिवर्स सब तो कुछ हमेशा अपने आप हो बताता रहा ही है. है. Yes, ma'am. ट्यून इन करो ना तो यूनिवर्स सब कुछ बताता है. Yes. So you just have to tune in. Yeah. Anybody else wants to share what is your greatest takeaway from today's session? Not just from today's session, but from this entire journey I've had so far. So मतलब in one of the session, like जो हमारे दर्शन जी हैं, उन्होंने एक बात शेयर की थी about that कि he parked his car or vehicle somewhere, and then he left it to God कि मतलब he is going to take care of it, like and I shared that the same thing with you as well. So taking that as an example, तो अब मतलब I just wish what I want, and if I have to trust someone, be that person is trustworthy or not, I just do it with my full intensity, full
honesty and leave the result on on the universe. कि जो भी होगा I have to be honest. Like मेरे मन में doubt होगा तो फिर things may take drastic change. Things may not convert. So that I have learned. Good. Yeah. Hello, ma'am. I just want to share one thing. Yeah. Minu? I was wearing a gold earring in my ears. Yesterday, one of it was lost. और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा. तो मुझे लग रहा है कि थैंक यू, ये मुझे मिल गया है. अभी तक दो आई कुड नॉट फाउंड इट, बट द शिफ्ट इज कि आई एम नॉट एट ऑल ट्रबल एट ऑल कि मेरा डायमंड का इयरिंग खो गया है. कोई बात नहीं, अगर वो मिल जाएगा तो इट्स ओके, या नहीं मिलेगा तो भी इट्स ओके. हाँ, but don't say नहीं मिलेगा तो भी ओके. अगर आपको चाहिए तो you have to just keep believing that you found it and just imagining that you got it and you're wearing it and just say thank you for returning my diamond earring and I'm enjoying wearing it again. क्योंकि ये बीच में जैसे ही आपके एक मिनट में जैसे ही आपके मन में आ गया ना मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वहां पर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट है. यूनिवर्स को जो समझ आएगा वो वही करेगा. हो सकता दे, हो सकता ना दे, बट इफ यू वेरी क्लियर दैट यू वांट इट बैक देन यू हैव टू से दैट. और श्रुति को तो फर्स्ट टाइम जब उसने बहुत कन्विक्शन के साथ मांगा था तो उसकी रिंग वापस मिल ही गई थी, और दूसरी बार में उसने भी यही सोचा और छोड़ दिया उसको, तो मिली नहीं है उसको. नहीं, आई एम नॉट एट ऑल वरीड. एंड मेरे हस्बैंड कहते तूने कहाँ ढूंढा, ये बेड झाड़ा, वहां देख यहाँ देख, घर पे ही हूँ मैं कहा मैं आई एम जस्ट पुटिंग ग्रेटिट्यूड कि वो मुझे मिल गया है. आई विल फाउंड इट. तो वरी नहीं होना है और थैंकफुल रहना कि मिल गया यार, मुझे तो मिलना ही है वो. दैट्स इट. या ग्रेट. So thank you everybody for such a wonderful session today. And today is what, Tuesday or Wednesday? Wednesday. Okay. Wednesday. Okay, so wonderful Wednesday to all of you. Have a wonderful day and I'll see you tomorrow at 6:20. And please जरा WhatsApp group में कुछ तो share किया करो. सबके सब सो रहे होते हैं यार, कुछ तो लिखो उसमें, मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ कुछ हो रहा है आप लोगों की लाइफ में. कुछ तो शेयर किया करो या, बिकॉज अदरवाइज मुझे लगता है मैं आती हूँ वहाँ पे चिक 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 बक 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 करके चले आती हूँ, किसी को कुछ हो नहीं रहा, किसी को कुछ मिल नहीं रहा. अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज शेयर तो करा करो ना कि आपको काम कुछ हो रहा है, तभी तो आते हैं सुबह उठ के, ऐसे कैसे आ सकते हैं. हाँ, बट सेशन में कुछ मिला आपको, सो स्टार्ट राइटिंग. और कुछ नहीं तो एक एवरी डे का एक टेक अवे लिखना शुरू कर दो, सो दैट हो सकता है जो आपको मिला वो दूसरे को कुछ और मिला. जब कोई दूसरा शेयर करेगा तो आपको लगे हाँ यार ये भी तो मैंने सुना था, यार दिस इज ऑल्सो ग्रेट. दिस वे यू विल बी हेल्पिंग ईच अदर. तो आप जितने भी लोग शेयर करोगे एक दूसरे से पता नहीं क्या मिल जाएगा, तो शेयर करना शुरू करो. ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय एंड आई विल सी यू टुमारो एट 6:20. Prayer, ma'am, prayer. Okay. Good day. Bye bye. 1 second. Let's do the gratitude prayer. So hold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you. आपके मन में अभी जो सबसे पहले दिमाग में नाम आया आज when we were talking about 3 people, just say thank you to that person. Okay. So thank you everybody and thank you for reminding me. मैं भूल जाती हूँ आजकल, वो लपकड़ होती जा रही हूँ. So thank you and I'll see you tomorrow at 6:20. Bye bye. Bye, ma'am. Have a good day. Bye, Jagjit. Bye. Take Bye care. bye. Bye bye.